अभी तो बच्चे ज्वाइन करने में दीदी। आपका समाना कब दूसरा वो वाला Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm on chat if you all can hear me? All right, so thank you, Hamis, Bilal, Rayan, Habib, Musfira, Ali Hassan, Iman, and the rest for your kind confirmation. I think most of the people have joined us. Let's take a quick recap of what we studied in the previous class. Okay. So in the previous class, we talked about what are stationary waves and how they are formed. Stationary waves kya hai? Like
what happens is when you have two waves that have the same wavelength, amplitude, speed, frequency, and they are passing through the medium in opposite direction. एक ही जगह से दो वेव गुजर रही हैं opposite direction में. And when these two waves interfere continuously, so as a result of their continuous interference, we end up getting a new waveform that appears to be stationary. And we call that new wave which is formed as a stationary wave or standing waves. So we discussed कि भाई continuous waves traveling in opposite directions superimposed continuously, and this can set up a stationary wave pattern also known as standing waves. The waves must be of the same speed, frequency and similar amplitude and hence must have a constant phase difference. We talked about this. फिर हमने कल ये पूरा डिस्कस कर लिया था कि stationary waves are so called as the profile of the wave does not move along, it only oscillates. अदर क्या होता है कि आपकी जो वेव की प्रोफाइल है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही होती है, अनलाइक अ प्रोग्रेसिव वेव जिसको आमतौर पर हम इन जनरल से वेव्स कहते हुए आए अब तक. उसमें वी यूज्ड टू सी कि भाई वेव की प्रोफाइल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव जा रही होती है. तो प्रोफाइल अगर वेव टू द राइट जा रही है तो द प्रोफाइल इज आल्सो मूविंग टू द राइट. इफ वेव इज मूविंग टू द लेफ्ट द प्रोफाइल इज आल्सो मूविंग टू द लेफ्ट ना. So this also means that energy does not pass along a standing wave. As such, they do not meet our strict definition of wave which do transfer energy and are more precisely called as the progressive wave. जिन्हें आमतौर पर हम progressive wave कहते हैं. उसमें प्रोफाइल आगे जाती है तो एनर्जी आगे जा रही होती है. Because the profile of the wave appears to be stationary, not moving in any direction. So we can say that the energy is kind of confined between 2 points. So in a stationary wave, energy is confined between 2 points. So हमारी इसके ऊपर बात हुई थी. मैंने आपको पहले दो प्रोग्रेसिव वेव्स बना के दिखाई थी. एक वेव ए थी और एक वेव बी थी. वेव ए इज अ वेव व्हिच इज मूविंग टू द राइट और वेव बी इज अ वेव व्हिच इज मूविंग टू द लेफ्ट. अब अगर टू द राइट जा रही तो आप देखो इसकी जो प्रोफाइल है ना वो आगे जा रही है. Its profile is moving to the right. This is what happens in a progressive wave. Now, if wave is moving to the right, तो इसकी जो प्रोफाइल है वो कहाँ जा रही होती है, वो आगे जा रही होती है. Similarly, there is a wave B which is moving to the left. तो आप देख सकते हैं इसकी जो प्रोफाइल है वो किधर जा रही है, वो to the left move करती जा रही है ना. So this is what happens when the wave move to the left. ये हम already progressive wave की fundamental wave की property में discuss कर चुके हैं. Then I tried to explain you कि अगर ये दोनों waves कम है, जैसे मैंने 4 extreme points पकड़ लिए थे, t equals 0 है, t equal t by 5, t by 4, t by 2, 3, t by 4, capital T. अगर मैं इन 4 different point of time पे इन दोनों waves का interference कराऊँ, so जब इन दोनों का interference होगा, so the interference appears to be a constructive interference. Let's say in my situation at t equals 0, the two waves were in phase. Na? So I ended up getting a wave which has the same wavelength but an amplitude double the amplitude of the two individual waves moving in opposite direction. Then after 1/4 of the time period we see a destructive interference. Then we see a constructive interference. लेकिन वो constructive interference पहले वाले constructive interference से बिल्कुल out of phase है. यानी कि पहले वाला यूं बन रहा था तो अब जो दोबारा constructive interference हुआ है वो इस तरह से बनना शुरू हो गया. Then again destructive interference, then again constructive interference, and this will just keep happening, you know, if the pattern will keep repeating. मैंने कल भी एक चीज बताया था कि this is a wave, this is a stationary wave, this is also a stationary wave which is a little challenging to absorb. मैंने आपसे कहा था ना पास्ट पेपर में आप देखेंगे एक क्वेश्चन आया हुआ जिसमें उन्होंने बनाया हुआ भाई ये कहते हैं फिगर बिलो शोज अ स्टेशनरी वेव. तो बच्चे परेशान रहते हैं कैसी वेव है जिसमें वेव बनी हुई नजर नहीं आ रही, बिकॉज यू नो वी थिंक ऑफ वेव एज समथिंग लाइक दिस ना एट ऑल द टाइम, बट इन स्टेशनरी वेव देयर इज अ पॉइंट व्हेन ऑल द पार्टिकल्स are at zero displacement ना, जिसको हम this is just a point of time when it happens. So this is also a stationary wave. Okay, this is a stationary wave, this is also a stationary wave. अब ये पैटर्न एक मिनट, ये पैटर्न इतनी तेजी से रिपीट हो रहे होते हैं, इतनी तेजी से रिपीट हो रहे होते हैं कि what we end up is we end up seeing loops like this. इस तरह के ना हमें लूप बनते हुए नजर आना शुरू हो जाते हैं ना. तो मैं
इसको कॉपी करके इधर ही ले आता हूँ। ठीक है भाई, कि भाई पहले लेट से हमारे पास हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये इतनी तेजी से रिपीट हो रहा होता है कि लाइक पहली इमेज आपकी आंख से जाती नहीं, दूसरी इमेज आ जाती है, दूसरी इमेज जाती नहीं, तीसरी इमेज आ जाती है। तो you what happens is कि your eye starts seeing all the image at once, which is not the case. Obviously you cannot have a string which is at one time at both the positions, या तो ये ऊपर होगा तो नीचे होगा ना, बट इतनी तेजी से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं you end up seeing loops। फिर हमने पिछली क्लास में ये बात की कि अगर अब फिर लाइक वी अंडरस्टैंड कैसे वो स्टेशनरी वेव बनती है, किस तरह से ना कंटीन्यूअस इंटरफेरेंस किस तरह से होता है, एंड व्हाई we kind of may get deceived by looking at the wave as if के लूप्स बन रहे हैं, बट एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न्स रिपीट हो रहे होते हैं। After discussing how stationary waves are formed, we discussed about two important wave properties. वो important wave properties क्या थी कि भाई एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव वेव में अगर आपके पास कोई एक वेव है जो कि अभी ऐसी दिख रही है, तो थोड़ी देर के बाद ये वेव ऐसी दिखेगी, राइट? फिर थोड़ी देर के बाद ये वेव ऐसी दिखेगी, तो प्रोफाइल आगे जा रहा होता है। स्टेशनरी वेव में ऐसे नहीं होता। स्टेशनरी वेव में आपको वेव यूं दिखती है, थोड़ी देर के बाद आपको ये वेव यूं दिखती है, फिर यूं दिखना शुरू हो जाती है, एंड सो ऑन। सो द प्रोफाइल इज नॉट मूविंग अलोंग। फिर हमने एक चीज ऑब्जर्व किया कि लाइक एक एक प्रोग्रेसिव वेव में, एक जैसे यहाँ पे ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, अगर आप इन दोनों को अलग अलग देखेंगे ना, तो both the two waves are progressive waves। तो इसमें you cannot find a single point which is stationary at all points. For example, if you see this point, this point is right now at zero displacement, but this will not always stay at zero displacement ना। थोड़ी देर बाद यही पार्टिकल आप देखो एक्सट्रीम पे नजर आ रहा है ना, यही पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पे आ गया, यही पार्टिकल वापस लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया। So this is the property of a progressive wave। वेव में मैंने आपसे कहा था हर पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ऐसा थोड़ी है कि एक पार्टिकल बीच में डिसाइड कर ले हमें ऑसिलेट नहीं करना। बट जब इन्हीं दो वेव्स का कंटिन्यूस इंटरफेरेंस होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस जब एक नई वेव बनती है, तो उसमें वी सी समथिंग इंटरेस्टिंग। वी सी अ पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से इसको मार्क किया हुआ है कि दिस पॉइंट is at zero displacement at t equals 0. The same point is at zero displacement at t equal t by 4. The same point is at zero displacement at t equal capital T by 2. The same point is at zero displacement at t equal 3t by 4. So at all point of time, this particle is at zero displacement. So you can say this particle is kind of at rest. Okay. So these are this वो particle ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये वो सारे point हैं जो at all point of time आपको zero displacement पे नजर आ रहे हैं ना। So these are the points जिन्हें हम stationary wave में प्यार से कहते हैं nodes। We call these points as the nodes। तो ये आपके पास वो points हैं जिन्हें आप nodes कहते हैं। यहाँ पे देखो ना, ये पार्टिकल कहीं भी नहीं जा रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा है, सही है। तो हमने ये दो पॉइंट्स कल की क्लास में डिस्कस किए थे कि भाई प्रोग्रेसिव वेव में ना ईच पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज डिस्प्लेस्ड बट एट डिफरेंट इंस्टेंट। हर पॉइंट डिस्प्लेस होता है, सही है ना। अगर कोई पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो नजर भी आ जाएगा तो दैट वुड बी जस्ट वन इंस्टेंट। आप उससे जरा सा अगले इंस्टेंट पे चेक करोगे, पिछले इंस्टेंट पे चेक करोगे, यू वोंट फाइंड दैट पार्टिकल एट जीरो डिस्प्लेसमेंट। But for a stationary waves, yes, there are points that we precisely call as the nodes where no displacement है, जहाँ पे कोई displacement नहीं हो रही होती। तो एक तो ये fundamental distance था जो हमने डिस्कस किया था। फिर the wave profile moves in the direction of the propagation। wave profile एक प्रोग्रेसिव वेव में आगे जा रही होती है, जैसे यहाँ पर आपके सामने बनी हुई है ना कि भाई अभी अगर ये वेव ऐसी है तो थोड़ी देर बाद ये वेव आगे जाना शुरू हो जाएगी। बट स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता, प्रोफाइल मूव नहीं करती, बस प्रोफाइल ही ऑसिलेट कर रही होती है, ऊपर नीचे आते हुए नजर आ रही होती है। तो द वेव प्रोफाइल डज नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब इससे पहले कि ये वो सारी बातें जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। पर इससे पहले कि मैं आज की क्लास में कोई नई चीज आपको पढ़ाऊं, फर्स्ट आई वुड वांट टू हियर
from you all if there is any question. जैसे यहाँ पे कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं जी. सिर्फ नोड पर हर पॉइंट पे जीरो डिस्प्लेसमेंट. हर पॉइंट पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होती है. एक इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसा भी होता है जहाँ पे हर पॉइंट पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है. साथ नहीं है ना, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे एक वक्त में ये या तो ये या तो ये. सही है. आप कुछ पूछ रहे थे. मैं भी इस पे आता हूँ. असल में द डिफरेंस बिटवीन आस्किंग फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड आस्किंग फॉर एम्पलीट्यूड, जैसे कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. अभी आज इस पे बात करेंगे. आज जो हमारा डिस्कशन है ना वो इसी चीज के ऊपर है. सही है भाई. अच्छा यहाँ पे देखते हैं. हाँ रहीम गुल बिल्कुल. वो जो दो वेव्स थी ना, जो एक राइट पे जा रही थी एक लेफ्ट पे आ रही थी, उनका जो इंटरफेरेंस होगा ना, उनका जो इंटरफेरेंस के नतीजे में जो नई वेव बनेगी ना, कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस की वजह से, दैट वुड बी अ स्टेशनरी वेव. अच्छा, अब I would really appreciate quick acknowledgement from everyone. If everyone can please write all clear on chat if you are good till now, so we can confidently move further. ईमान कहती है सर वो जीरो डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दें क्या ईमान. एक मैं तुम्हें ना जरा ऐसे बना के समझाता हूँ. ईमान, दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव. ओके, जो नीचे बना हुआ है ना, और ये प्रोग्रेसिव वेव कहाँ जा रहा है? टू द राइट. कैसे पता लगा? क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसका जो प्रोफाइल है ना वो मूव कर रहा है टू द राइट. ईमान ये बात समझ में आती है? एक प्रोग्रेसिव वेव डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा दिखता है. आफ्टर वन टाइम पीरियड एक पूरी वेवलेंथ माफिक आगे चला जाता है वेव का प्रोफाइल. ईमान ये बात समझ आती है आपको? यस सर. अच्छा, अब मैं आपके सामने बनाता हूँ एक स्टेशनरी वेव. ठीक है, अगर आप एक स्टेशनरी वेव को डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप t इक्वल 0 पे देखेंगे, तो आपको आपको जो आपका स्टेशनरी वेव नजर आएगा ना वो ऐसे नजर आएगा. यानी वो प्रोग्रेसिव वेव जिससे ये स्टेशनरी वेव मिली, अगर उससे कंपेयर करूं तो आपकी स्टेशनरी वेव में एक लेट्स से t इक्वल 0 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, तो आपको डबल एम्पलीट्यूड नजर आएगा. ठीक है, फिर इसी स्टेशनरी वेव की अपीयरेंस ऐसी हो जाएगी. फिर इसी स्टेशनरी वेव की अपीयरेंस ऐसी हो जाएगी. फिर यही स्टेशनरी वेव ऐसा दिखेगा. फिर यही स्टेशनरी वेव वापस ऐसा दिखेगा. ईमान, आपको ये बात समझ आती है? यस सर. You know, this is progressive wave observed at different point of time. Okay, this is stationary wave observed at different point of time. तो अब प्रोग्रेसिव वेव में you pick up any random point. Let's say इस पॉइंट को पिक कर लेते हैं. इस पॉइंट का अभी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? मैक्सिमम है.
ठीक है ना, इस पॉइंट का भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। यहाँ पर फिर इस ये इट्स द सेम पॉइंट ना जिसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया। अच्छा, स्टेशनरी वेव में ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा 0 मिलेगा। मैं नहीं कह रहा सारे पार्टिकल्स हैं, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाल लो, यू आर गोइंग टू फाइंड देयर डिस्प्लेसमेंट एज 0। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे समझाता हूँ। जैसे स्टेशनरी वेव में इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अभी मैक्सिमम है नेगेटिव में, फिर 0 भी है, फिर मैक्सिमम है, फिर 0 भी है, फिर मैक्सिमम भी है, ऐसा ही ना। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 नहीं, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 नहीं है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 नहीं है। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 है, और ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी हमारे लिए, बिकॉज वी हैव नेवर थॉट ऑफ दिस टू हैपन इन एनी वेव एवर। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई दुनिया में हमें ऐसी वेव भी मिलेगी, कभी नहीं सोचा। का मतलब ये कि जब हम वेव की फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा सिचुएशन भी आएगा जहां पे एक ऐसी वेव बनेगी जिसमें बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जो जो कि डिस्प्लेस ही नहीं हो रहे होंगे एट ऑल। So this is one of the fundamental difference between progressive and stationary wave. In stationary wave, you do not have any such point, that has 0 displacement at all point of time. Whereas in stationary wave, yes, you do have points that have 0 displacement. I mean, and they are at a distance equal to lambda by 2. कितने दूर होते हैं ये बता देता हूँ, हर lambda by 2 के distance पे वो point बैठा हुआ होगा। Iman, am I able to make myself clear now? यस सर, समझ आ गई। सर जी भाई। सर ये क्वेश्चन है कि स्टेशनरी वेव तो दो प्रोग्रेसिव वेव्स का से ही बनती है ना। जी हाँ, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वेव अपनी उस डायरेक्शन से मूव ही नहीं कर रही, आप दो वेव्स को ओवरलैप कर रहे हैं, वो तो यार एक असल में दूसरे तुमको तो कॉर्नर इसका पे। इसका जवाब तो तुम्हें खुद दे देना चाहिए ना, कि जो दो वेव्स हैं वो दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। हम्म। तो टेक्निकली देखा जाए तो जितना नेट एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक रेड वाले ने किया, उतना ही नेट एनर्जी का ट्रांसफर पर्पल वाले ने भी तो कर दिया है। तो हम्म। नेट एनर्जी का ट्रांसफर 0 है ना, तो इट्स वेरी फेयर टू से कि एनर्जी फंस गई है दो पॉइंट के बीच में। हाँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आप दो वेव्स को अलग अलग एक ही स्ट्रिंग पे मतलब एक कॉर्नर से भी वाइब्रेट करते हैं और दूसरे कॉर्नर से भी करते हैं, तो ऐसा भी तो हाँ। होता है कि दोनों, जैसे हमने वो पढ़ा था कि क्रस्ट मतलब वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जा रही है वेव ना, हम्म। राइट राइट मूव करिए और लेफ्ट मूव करिए, तो वो एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि वो एक बड़ी वेव ऊपर बन जाती है वो तो और बनती है कभी। ना। हाँ हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ये वहां जाए वो नीचे हो जाए। नहीं नहीं, देखो असल में तुम दो सिचुएशंस को ना मिक्स कर रहे हो। एक सिचुएशन ये है कि एक वेव जा रही थी और एक और वेव जा रही थी, बीच में एक पॉइंट है जहां पे इनका इंटरफेरेंस है। तो भाई यहाँ से एनर्जी निकल गई और यहाँ से भी एनर्जी निकल गई, इनके रिजल्टेंट में बीच में एक पॉइंट होगा जो डिस्टर्ब होगा। बस उस पॉइंट का आप डिस्प्लेसमेंट नोट कर लो, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप लगा लोगे। अच्छा, ठीक सही है, है। सही ना। अब हमने पीछे जितने भी केसेस पढ़े ना उसमें हमने पढ़ा है कि भाई एक एक जगह है, वहां से एक वेव जा रही है और यहीं से एक और वेव भी जा रही है। अब दोनों ही इन फेज है ना, तो कंटिन्यूसली या तो इन फेज होंगी तो कंटिन्यूस इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव ही होगा, या तो बिल्कुल ही दोनों सोर्सेज आउट ऑफ फेज है तो कंटिन्यूसली आउट ऑफ फेज रहेंगे तो कंटिन्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बट अगर एक वेव यूं जा रही है ना और एक वेव यूं आ रही है, तो आफ्टर एवरी 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी ये दो वेव लेट्स से इन फेज है ना, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद यही दो वेव आउट ऑफ फेज हो जाएगी। तुम समझ रहे हो मेरी बात? सर, ये अगर तो दोनों एनर्जी कैंसिल आउट कर रहे हैं तो फिर स्ट्रेट लाइन ही देखो क्यों नहीं है चंदा पूरे टाइम? चंदा, देयर इज नो सच थिंग एज एनर्जी का कैंसिल आउट होना। एनर्जी कैंसिल नहीं होती। तो मेरी बात समझो, एक वेव है, सही है, एक सोर्स है, यानी यहाँ पे दो सोर्स है, ठीक है। एक ब्लू कलर का सोर्स है यहाँ पे, और बिल्कुल यहीं पे ना एक रेड कलर का सोर्स ऑफ वेव है। अच्छा, एक दोनों वेव एक जैसे हैं, ठीक है। एक ब्लू सोर्स ने वेव प्रोड्यूस की, ठीक है, दिस इज सोर्स ए, और एक और सोर्स से वेव बी, उसने बिल्कुल कोहेरेंट वेव पैदा की। अब एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम ना इन दोनों का इंटरफेरेंस क्या होगा?
एट ऑल पॉइंट थ्रू आउट Same. तुम्हें इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, मतलब एक वो ऊपर ये एक मिलेगा, बड़ा सा, हाँ वो ये बड़ा सा। मिलेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? हम्म। अच्छा आप मेरी बात समझो, दो वेव्स हैं, ठीक है, एक वेव है, एक सोर्स है यहीं पे, दूसरा सोर्स भी है, ठीक है, और दोनों की वेव बिल्कुल एक जैसी, ठीक है, यानी कोहेरेंट है। लेकिन सोर्सेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ऑसिलेट करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि दो कोहेरेंट वेव्स का भी क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। इनका इंटरफेरेंस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रक्टिव होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूं यार टी इक्वल 0 पे कंस्ट्रक्टिव था, टी इक्वल 1.4, भाई कंटिन्यूअसली इन फेज है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है इन दोनों वेव्स का, कंटिन्यूअसली इनके बीच इंटरफेरेंस क्या हो रहा होगा? कंस्ट्रक्ट एक बड़ी वेव में एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें यही मिल रहा होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है सोर्सेज स्टार्ट में, तो एट एवरी पॉइंट लेट्स से इसी इसी यहीं से दोनों वेव जा रही है ना, दोनों हर पॉइंट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। बट अगर यही काम मैं करूं ना कि मेरे पास एक वेव है इधर और एक वेव है इधर, एक वेव, इसको मैं लेट्स से ग्रीन से शो करता हूं तुम्हें, ठीक है ना, लेट्स से दिस इज वेव बी एंड दिस इज वेव ए। अब देखो वेव ए यूं जा रही है, थोड़ा सा वेवलेंथ कम छोटा कर दिया, उसको इग्नोर कर देना, ठीक है, और अभी वेव बी यूं जा रही थी, अभी इनका इंटरफेरेंस क्या होगा? अभी इनका इंटरफेरेंस क्या होगा? लेट्स अभी हम कंस्ट्रक्टिव, हैं टी इक्वल 0 कंस्ट्रक्टिव ही पे, होगा ना? कंस्ट्रक्टिव होगा ना मेरे बच्चे, ठीक है, अभी हाँ। अभी तुम देखते रहना, ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग गंदी हो जाएगी लेकिन जरूरी है कि इसी के ऊपर बना के दिखाऊं मैं तुम्हें, ठीक है ना, अभी हो गया कंस्ट्रक्टिव। अच्छा अब यही दो वेव्स है, ठीक है ना, ए और बी, ए टू द राइट जा रहा था, बी टू द लेफ्ट जा रहा था, सही है? सर ये एक ही स्ट्रिंग की बात हो रही है, एक ही वेव में दोनों ऑपोजिट हो रहा है कि दो अलग अलग, जैसे वो आपने हाँ स्ट्रिंग हाँ, अभी दिखाई अभी थी। अभी अभी तभी तभी तो मैं एक साथ दिया। अब मेरी बात सुन, अब क्या हुआ, ये जो वेव ए तुमने अभी बनाई थी, ये वेव ए थी ना, ये थी एट टी इक्वल 0, टी इक्वल 1/1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी यही वेव ए यूं हो जाएगी? जी। मानते हो ये बात? जी। देखो ना, पहले वेव ए का प्रोफाइल ये था, अब उसका प्रोफाइल आगे चला गया ना, सही है? अच्छा, वेव बी जो के यूं आ रही थी, ठीक है ना, एट टी इक्वल 0, जब शुरू में तुमने टी इक्वल 0 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद यही तुम्हारी वेव यूं हो जाएगी। मानते हो? हम्म। वेव ए और बी का इंटरफेरेंस टी इक्वल 0 पे क्या हो रहा था? कंस्ट्रक्टिव। 1/4 टी पे मुझे बताओ इन दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। कैसा? ए और बी के इंटरफेरेंस से, वही ए और बी दोनों सेम सोर्स है, हाँ, अभी टी इक्वल 0 पे इनके रिजल्टेंट से बनने वाली वेव यूं दिख रही थी, हम्म। 1/4 ऑफ द टाइम के बाद इन्हीं का रिजल्टेंट यूं दिख रहा है। हाँ समझ रहे हो? असल जी। में उसूलन ये टॉपिक ऐसे ही पढ़ाना चाहिए कि डायरेक्ट एक ही ड्राइंग में सारा करा के दिखाए। भाई मैंने अपने 10 साल टीचिंग में ट्राई किया, बच्चों को समझ ही नहीं आता। सर आप तो मुझे एक तुम्हें बात अब बताएं इसलिए कि समझ आया क्योंकि मैंने पहले तुम्हें कि असल में समझाने के लिए ना
प्रॉब्लम यही है कि अलग अलग करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीजें हैं ना, आपको वेव का डिस्प्लेस, इंडिविजुअल वेव्स की मूवमेंट भी दिखानी है, फिर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका। अब इस ड्राइंग को देख के किसी को क्या समझ आएगा? सर लेकिन मेरा समझ लो। क्वेश्चन ये है कि दो वेव्स जो हैं वो एक ही स्ट्रिंग के दो अलग अलग कॉर्नर से हैं। बिल्कुल अच्छा फिर सही है, मैं समझा कि दो वेव्स हैं लेकिन वो दोनों अलग अलग सोर्सेज से प्रोड्यूस हुए हैं। सही है, समझ आ गया मुझे। समझ। एक एक तो तुम दोबारा बोलना, तुम पहले क्या समझ रहे हो, तुमने बाद में क्या मतलब मैं समझा? ये समझ रहा था कि दो वेव्स एक लेफ्ट से आ रही है एक राइट से आ रही है, वो एक सोर्स से नहीं है, वो दो अलग अलग सोर्स है और वो टकरा रहे हैं। नहीं, कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस है, कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस। देखो सोर्सेज हाँ अलग भी सही, हो सकते हैं, बट एक जैसी वेव होनी चाहिए। सही इसीलिए है, तो समझ यहाँ आ पर गया। ना, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मैं ना, अगर तुमने गौर किया हो ना मेरे लेक्चर में, मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ कि कंटिन्यूअस वेव ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज कंटिन्यूअसली, मुसलसल मुलाकात हो रही होती है। तो उनके कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस के नतीजे में जो पैटर्न बनता है ना, अगर आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, तो दैट पैटर्न अपीयर्स एज अ स्टेशनरी वेव, दैट पैटर्न अपीयर्स टू बी समथिंग व्हिच इज स्टैंडिंग। ऐसा लगता है रुक गई है वेव। सही है, समझ आ गया अब। सही है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। थैंक यू सर। ताकि आई थिंक बाकी लोगों को भी जो भी 19-20 चल रहा होगा वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है भाई। अच्छा अब सर, we can have two different sources producing a wave, but it must be, हाँ बिल्कुल 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 ऐसा कर सकते हैं आप। अगर आप श्योर है ना कि आपके दो सोर्सेज एक जैसे वेव प्रोड्यूस कर सकती हैं, एक जैसी का मतलब कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, और स्टेशनरी वेव के लिए तो हम कहते हैं एम्पलीट्यूड भी सेम रखो, तो कोई मसले की बात नहीं है। सही। सो हाँ, दे विल कैंसिल आउट इन 1/4। तो असल में तुम लोग पता है दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। हम जो वेव फॉर्म बनाते हैं ना, उसमें हम जिस चीज को फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हम नेट डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके लाइक का सम निकाल लेते हैं टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। तुम लोग क्या करो, तुम लोग एनर्जी का सम निकालने की कोशिश करो। एनर्जी का सम थोड़ी, एनर्जी तो निकल जाएगी ना, या राइट वाली लेफ्ट पे चली जाएगी, लेफ्ट वाली राइट पे चली जाएगी। जो नेट डिस्प्लेसमेंट निकलता है, तो हमें तो पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व करना है ना, तो वी नीड टॉक अबाउट कि पार्टिकल के साथ क्या होगा, कि अब पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, अब उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, समझ लो। सो डू नॉट ट्राई टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनर्जी। एनर्जी का नेट फ्लो बस यही होगा कि एट द एंड ऑफ द डे नेट फ्लो जीरो होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी राइट से लेफ्ट पे गई उतनी एनर्जी लेफ्ट से राइट पे चली गई। आसिम समझ आया तुम लोगों को? अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कोई भी एक और पॉइंट पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, आप आपका वाला मसला हल कर देते हैं। एवरी पॉइंट इन द वेव हैज द सेम एम्पलीट्यूड, पॉइंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स आर डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है जो हमें समझने की जरूरत है। वो ये कि एक प्रोग्रेसिव वेव में, एक प्रोग्रेसिव वेव में आप किसी भी पार्टिकल का जब मुझसे पूछेंगे ना डिस्प्लेसमेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपके आगे ना मार्क करता हूँ, बड़े गौर से देखना, बिकॉज एग्जामिनर अब तो थक गया हूँ अभी देख देख के कॉमन तरीके जिनसे वो आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको तंग करेगा ना। देखो पॉइंट, मैं वैल्यूज मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, ठीक है, 5 0 -5, 5 0 -5, ठीक है। On my left hand is a progressive wave, on my right hand is a stationary wave, ठीक है, and I'm going to compare them। अच्छा मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मैं एक पॉइंट मार्क करता हूं, पॉइंट ए, ठीक है, एक पॉइंट मार्क करता हूं पॉइंट बी, और एक पॉइंट मार्क करता हूं पॉइंट सी, ठीक है। मुझे आप बताएं पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट क्या है, सारे बताएं जल्दी से। पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट है 5, सबको नजर आ रहा है, कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है?
जल्दी सारे बताएं। 0, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं पॉइंट सी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? -5, ठीक है। यहां तक सारे मेरे साथ, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पॉइंट ए का एम्पलीट्यूड क्या है? फाइव। क्या है? 5। पॉइंट बी का एम्पलीट्यूड क्या है? आए जालिम, पॉइंट बी का एम्पलीट्यूड है 5। पॉइंट बी का एम्पलीट्यूड क्या है? 5। पॉइंट बी का भी एम्पलीट्यूड क्या है? 5। पॉइंट सी का भी एम्पलीट्यूड क्या है? देखिए, जब मैं आपसे ये पूछता हूं ना कि मुझे इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बता दो, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये पार्टिकल मैक्सिमम कहां तक जाएगा। डेफिनेशन क्या है एम्पलीट्यूड? Amplitude is simply the maximum displacement that a particle will cover. सही है। क्या पार्टिकल बी हमेशा यहां पे रहेगा? मुझे एक बात बताएं, पार्टिकल ए की ऑसिलेशन कैसी है? यही है ना पार्टिकल ए की ऑसिलेशन, और यही है पार्टिकल बी की भी ऑसिलेशन। जस्ट बिकॉज कि पार्टिकल बी अभी 0 डिस्प्लेसमेंट पे है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पार्टिकल बी का एम्पलीट्यूड भी 0 है। पार्टिकल बी का एम्पलीट्यूड 0 नहीं। और इतनी बार इन्होंने पास पेपर्स में छिछोरपन की है ना, they will deliberately pick up a point which is at 0 displacement in a progressive wave and they will ask you the amplitude. हम क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड को मिक्स कर देते हैं। जस्ट बिकॉज अ पार्टिकल इज राइट नाउ एट 0 डिस्प्लेसमेंट, दैट डजंट मीन कि ये पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही है। ये तो अभी 0 पे है ना यार। थोड़ी देर बाद देखो, यही है ना पार्टिकल बी, ये रहा पार्टिकल ए, ये रहा पार्टिकल बी, ये रहा पार्टिकल सी। थोड़ी देर बाद 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट 5 से क्या हो गया? 0 हो गया। पार्टिकल बी का डिस्प्लेसमेंट 0 से क्या हो गया? 5 हो गया। एम्पलीट्यूड पार्टिकल ए का तब भी 5 था, अभी भी 5 है। एम्पलीट्यूड पार्टिकल बी का पहले भी 5 था, अभी भी। वो जब आप पूछ रहे थे ना कि सर उन्होंने पास्ट पेपर में पार्टिकल मीन पोजीशन पे और पूछा है कि उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, और उन्होंने उसको 5 बोला, हालांकि वो क्योंकि वो पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कि ये हद कितना ऊपर जाएगा। तो जितना ऊपर ये गया है ना, उतना ऊपर ये भी जाएगा। टेंशन नहीं लो। एक जुमला है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर उरूज को जवाल है, हर जवाल को उरूज है। हर वो पार्टिकल जो एक्सट्रीम पर है वो जिंदगी भर एक्सट्रीम पे नहीं रहेगा। हर पार्टिकल जो मीन पे वो जिंदगी भर मीन पे नहीं। ये फंडामेंटल है, वेव्स की फंडामेंटल्स है। समझ रहे हो आप मेरी बात? पार्टिकल सी का डिस्प्लेसमेंट -5 है, एम्पलीट्यूड इसका अभी भी 5 है। पार्टिकल सी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो गया, एम्पलीट्यूड अभी भी 5 है। ओ भाई, यहां से लेके यहां तक जितने भी पार्टिकल है ना मेरे भाई, सबका एम्पलीट्यूड सेम है, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। बिल्कुल मानता हूं। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, 0 है, इसका और ज्यादा है, इसका और ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट तो अभी क्या है, ये दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ? एम्पलीट्यूड इज नॉट समथिंग अभी क्या। एम्पलीट्यूड तो भाई जब पूरा ऑसिलेशन देखोगे तभी बताओगे ना। तो अब अली भाई ने कितनी खूबसूरत बात की है, सारे उसको नोट कर ले कि सर ऑल पार्टिकल्स इन अ कोहेरेंट वेव है। एक्चुअली कोहेरेंट नहीं, किसी भी प्रोग्रेसिव वेव को उठा लो। कोहेरेंट तो दो वेव्स को कंपेयर करके बताते हैं ना कि ये दो वेव्स कोहेरेंट है। यू इसको तो ये तो कोई भी आप पार्टिकल उठा लो, कोई भी एक वेव उठा लो, कोई भी एक वेव उठा लो, कोई भी प्रोग्रेसिव वेव हो, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टिकल का है यार मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करके वापस आ जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये ए की डिस्प्लेसमेंट है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बी का है और मैं बस थोड़ा सा करूंगा। हमने डे 1 में जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था ऑल द पार्टिकल्स इन अ वेव ऑसिलेट इन द सेम पैटर्न। सबका एम्पलीट्यूड क्या होता है?
दिस इज ट्रू फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव। समझ रहे हो आप मेरी बात? पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? अभी इसका डिस्प्लेसमेंट है 5। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ए का एम्पलीट्यूड क्या है भाई? 5। पार्टिकल बी का, देयर इज अ रीजन व्हाई मुझे स्टेशनरी वेव इतना पसंद है, क्योंकि स्टेशनरी वेव पढ़ाने के बहाने ना प्रोग्रेसिव के कॉन्सेप्ट सीधे हो जाते हैं। अगर आप कहीं पे ढीले हुए होते हो ना, वैसे तो ये चीज आपको पहले पढ़नी चाहिए थी प्रोग्रेसिव में। एम्पलीट्यूड देखो, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, एम्पलीट्यूड कितना है? 5। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? तो भाई मैक्सिमम ये 5 तक ही जाएगा। अभी आपको 0 पे नजर आ रहा है यार। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट -5 लिख देना फिर। हाँ हाँ, मतलब अगर आप नेगेटिव को रिस्पेक्ट देना चाहते, वैसे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं पूछते हैं, बेकार का सवाल है। ठीक है, इस पार्टिकल का इस वक्त डिस्प्लेसमेंट है -5, लेकिन पार्टिकल सी का इस वक्त एम्पलीट्यूड क्या है? 5। एम्पलीट्यूड पॉजिटिव भी होता है, वो मुझे पता। अब तुम्हें याद रहेगा एम्पलीट्यूड को क्यों अलग से पढ़ाते हैं। एम्पलीट्यूड को डिफाइन करते हैं, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब जरूरी नहीं कि अगर अभी आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में नहीं है तो आपका एम्पलीट्यूड हम 0 काउंट कर लेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? भाई जल्दी से बताएं, क्या ये बात सबको समझ आती है? Everyone listening to me online, can you guys please confirm? अभी जो चीज 0 है वो डिस्प्लेसमेंट है मोहित, समझ रहे हो? वो एम्पलीट्यूड नहीं है। ठीक है भाई, तो ये जो सारी बातें हो गई, ये किसके ऊपर हो गई? ये हो गई प्रोग्रेसिव वेव के ऊपर। अब बात करते हैं व्हाट हैपेंस टू अ फ्रीकिंग स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में क्या मसला है? ठीक है, मेरे ख्याल से ये ड्राइंग बहुत गंदी हो गई है। मैं नया पेज ले लेता हूँ। भाई ये मेरे पास एक प्रोग्रेसिव वेव है विच इज गोइंग टू द राइट। सही है? अच्छा, अब मैं आपके आगे बना रहा हूँ क्या? मैं आपके आगे बना रहा हूँ एक अदद स्टेशनरी वेव। सही है। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाओ। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो जो कल आप लोगों ने मुझसे पूछा था। कल काफी लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था और मैंने थोड़ा सा होल्ड करा दिया था। वो मेरे ख्याल से नाम भूल गया बच्चे का, शक्ल याद है मुझे उसकी, बड़ा प्यारा बच्चा है। उसने मुझसे पूछा था कि सर आप t=0 की बात कर रहे हैं, t=t/4 की बात कर रहे हैं, 3t/4 की बात कर रहे हैं, t/2 की, आप बीच का कोई टाइम उठाए ना, उस वक्त क्या होगा? तो आप थोड़ा सा उस पर बात करते हैं कि भाई देखो फुजैल देखो, जो भी था, अभी आपकी वेव ऐसी दिख रही है, ठीक है?
एट टी इक्वल 0, ठीक है। 1/4 टाइम पीरियड के बाद पूरा λ/4 आगे चली जाएगी, ठीक है ना। नीचे हमने वही वेव बनाया अभी, सही। अच्छा, लेट्स से आफ्टर 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, विच इज लेस देन 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड, आपकी वेव कैसी दिखेगी? तो भाई आपकी वेव थोड़ी सी आगे चली जाएगी, ऐसा है, ऐसा ही है ना भाई? क्या स्टेशनरी वेव आगे जाएगी? क्या स्टेशनरी वेव की प्रोफाइल आगे जाती है? ना, टी इक्वल 0 पे ये ऐसी दिख रही थी, T/4 पे सीधा ये हो जाएगी। सर व्हाट हैपेंस बिटवीन T इक्वल 0 एंड T/4? दिस हैपेंस। सर समझ नहीं आया। एक स्टेशनरी, एक प्रोग्रेसिव वेव, देखो मेरी बात सुनो, एक स्टेशनरी वेव अभी ऐसी देख रही है, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इसकी ये जो प्रोफाइल है ये उठ के आगे चली जाती है ना। यही होता है ना प्रोग्रेसिव वेव में, जिस डायरेक्शन में वेव एनर्जी जा रही होगी उस डायरेक्शन में प्रोफाइल आगे चली जाएगी, ठीक है। सभी देखते रहना। एक स्टेशनरी वेव में आपकी प्रोफाइल आगे नहीं जाती, यानी वो वेव जो पहले ऐसी दिख रही थी वो बड़ी सी, थोड़ी बाद यही वेव कैसी दिखेगी? उससे कम एम्पलीट्यूड, उसके थोड़ी देर बाद कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। उसके थोड़ी देर बाद कैसी दिखेगी? फिर कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी, फिर यूं। तभी तो इस कमबख्त का प्रोफाइल आगे ही नहीं जाता है। यानी अगर आप गौर से देखोगे ना तो आपकी वेव ऊपर नीचे हो रही है। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? आई प्रोफाइल आगे नहीं देखो हो रहा है क्या प्रोग्रेसिव वेव में? भाई स्टेशनरी को पढ़ के मजा ही उस वक्त आएगा जब तुम्हें प्रोग्रेसिव आता हो। प्रोग्रेसिव में क्या होता था, क्या हम यार मैंने इसके ऊपर क्या घंटों नहीं जाया किए तुम लोगों को सिर्फ ये समझाने में कि किस तरह एक प्रोग्रेसिव वेव में प्रोफाइल आगे जा रही होती है वक्त के साथ साथ। क्या नहीं किया है भाई? फिर एक पॉइंट आएगा जब फाइनली आपकी वेव यूं दिखना शुरू हो जाएगी। दिस इज गोइंग टू हैपन एट, प्रोफाइल क्या हो रही है? आगे जा रही है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी अभी समझाता हूँ, एक बहुत टाइट तरीका ध्यान में आया है मेरे। देखो लेट्स से एक वेव है, वैल्यू रख के समझा तो फौरन समझ में आ जाएगा। एक वेव है, उसका टाइम पीरियड है 20 मिली सेकेंड्स, ठीक है। आपके पास ये वाली वेव बनी एट टी इक्वल 0 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 1/4 का मतलब 5 मिली सेकेंड बाद आपको क्या नजर आएगा? आपको ये नजर आएगा, ठीक है। सर ये तो आप कल से बता रहे हैं, कितनी बार बताएंगे? सही है। फिर टी इक्वल 10 मिली सेकेंड पे ये नजर आएगा। सर हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं 1 मिली सेकेंड पे क्या हो, 2 मिली सेकेंड पे क्या हो, 3 मिली सेकेंड पे क्या होगा? तो भाई ये होगा एट टी इक्वल लेट्स से 2 मिली सेकेंड पे।
ये हो जाएगा एट टी इक्वल 3 मिली सेकेंड्स में। प्रोफाइल कम वक्त नहीं मूव करती, पूरी पूरी जो वेव है ना ऐसे ऊपर नीचे कर रही होती है, पूरी वेव ही ऑसिलेट कर रही है ऊपर नीचे। प्रोफाइल आगे, पहले क्या था सिर्फ पार्टिकल्स ऑसिलेट करते थे, अब क्या हो रही है, पूरी वेव ऑसिलेट कर रही है। तुम देखो ना, शुरू में ही मैंने एक बार मैंने कहा था बहुत वक्त लगेगा हमें इस चीज को एक्चुअली समझने में। जब मैंने क्या कहा था, stationary waves are so called as the profile of the wave does not move। ये प्रोफाइल नहीं हिलता है कम, इट ओनली ऑसिलेट्स। कौन ऑसिलेट कर रहा है? अबे कभी जिंदगी में हमने प्रोफाइल ऑसिलेट करते हुए थोड़ी देखा है, हमने जब भी देखा पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं ना, जिससे ऑटोमेटिकली एक नई प्रोफाइल बन जाती है। यहां पर भी पार्टिकल की ऑसिलेशन हो रही है, लेकिन जो अगर आप गौर से देखोगे ना, यू वुड फील लाइक एज द एंटायर प्रोफाइल इज ऊपर नीचे हुई। अब अब अगर अब अगर जालिम निगाहों से देखो तो तुम्हें एक चीज समझ आए। देखो इस पार्टिकल पे तो हमने बड़ा बात कर ली, ये तो कोई और, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है यार, ये तो बिल्कुल ही नहीं मूव कर रहा है, ये तो स्टेशनरी है, ठीक है, नोड है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अदर पार्टिकल्स। आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आएगी, अगर आप इस पार्टिकल को देखो, बीच वाले को, ये इसकी ऑसिलेशन है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा इसके बराबर वाले को देखो, ये इसकी ऑसिलेशन है, ऐसा ही है। यहां तक कि इसको देखो, इस बेचारे की भाई यही दुनिया है, यही जिंदगी है इसकी। ओ भाई, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर सीइंग neighboring particles are not oscillating with the same amplitude। मुझे आप एक बात बताएं, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा नहीं है। देखो डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, अब तुम्हें पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम कितना गया, ये भी ऊपर जा रहा है लेकिन बाजू वाले के मुकाबले में कम जा रहा है। इसकी बात करूं, इस बेचारे की जिंदगी इतनी सी, टू 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 ऑसिलेट कर रहे होता है या नहीं है? अरे बोलो ना, क्या लाइन से सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम है? नहीं है ना। प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा थोड़ी नहीं होता है, प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम होता है भाई। किसी भी पार्टिकल को उठा लो, अगर वो आज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे नहीं है ना, थोड़ी देर बाद जरूर आएगा, लेकिन ये वाला पार्टिकल क्या कभी इस डिस्प्लेसमेंट पे आएगा? ये वाला पार्टिकल नहीं आएगा। क्या ये पार्टिकल इससे ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो सारे पार्टिकल्स डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं ना। ये सिर्फ किस में होता है? ये स्टेशनरी वेव में होता है कि नेबरिंग पार्टिकल्स आर नॉट ऑसिलेटिंग विद द सेम एम्पलीट्यूड। प्रोग्रेसिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम होता है। कोई भी नेबरिंग पार्टिकल ये नहीं कह सकता मेरे बराबर वाला मुझसे ज्यादा ऊपर जाके वापस आया था, मैं तो इतना ऊपर नहीं गया था। बोलो ना। हाँ, जिन दो प्रोग्रेसिव वेव से स्टेशनरी वेव बन रही है ना, उसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पार्टिकल होगा ना, उसका एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल के एम्पलीट्यूड का डबल होगा। मैंने कल पहली क्लास में बोल दिया था कि इसमें मुझे एक पॉइंट समझाने में ना पूरा पूरा लेक्चर मिल जाता है, एंड आई लव डूइंग दिस बिकॉज इट्स, जब समझ आता है ना आपको मजा आ जाता है कि यार ये कोई चीज है। सही है। पहले जितने लोगों को समझ आ गया वो प्लीज एक्नॉलेज कर दो। सर हम्म। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने बताया ना कि T0 से T/4 तक का आपने मतलब डायरेक्ट बताया कि एक अबव और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, बीच में आपने कहा कि इनका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो क्या इस दौरान जो इनिशियली हमने बात की थी कि दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, उनकी इंटरफेरेंस की वजह से इनका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है?
या क्यों चेंज हो रहा है? स्टेशनरी मतलब वेव, स्टेशनरी वेव का बिल्कुल बिल्कुल इंटरफेरेंस इस तरह से हो रही होती है कि जो नई वेव बन रही होती है ना, वो ऐसी अजीबोगरीब वेव बन रही है। तो सर स्टेशनरी वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, बिल्कुल ऐसा ही है विशाल, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। ये कौन सा एसी चल रहा है जिससे गर्मी हो रही है कमरे में? आप लोग गर्मी नहीं लग रही है? करना है यार, इसको ठंडा कर यार बहुत। तो अब मैं आता हूं इस खूबसूरत पॉइंट को समझाने के लिए, विच इज फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, for a progressive wave, every point in the wave has the same amplitude. But for a stationary wave, between two successive nodes have different amplitude. दो नोड के बीच जितने भी पार्टिकल या किसी भी दो नेबरिंग पार्टिकल को उठा लो, उनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, they have different amplitude. Are you all with me? नहीं समझ आ रही है बात? आ रही है समझ में? अच्छा भाई, अब जिनको समझ आ गया उनको फिर भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, कि कुछ लोग हैं जिनको शायद अभी भी समझ नहीं आया। भाई अब आ जाओ, एनीवन हु वांट्स मी टू एक्सप्लेन एनीथिंग अगेन, कोई भी सवाल डायरेक्ट माइक खोल के पूछ लो। देखो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपसे, क्या नाम है, शिफा, कोई लीव करने की कोशिश ना करे, वरना कोई काम की चीज पढ़ा दूंगा। अगर किसी ने गायब होने की कोशिश की ना, तो नई चीज पढ़ा दूंगा। देखो शिफा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रोग्रेसिव वेव में ना, आप किसी भी नेबरिंग पार्टिकल को जब आप पकड़ोगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पॉइंट पे पार्टिकल को चेक करते हो ना, इस पार्टिकल की ऑसिलेशन ये, तो इसके बराबर वाले पार्टिकल की भी ऑसिलेशन यही है, इसकी ऑसिलेशन भी ऐसी है, इसके सबकी ऑसिलेशन ना एक जैसी है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा पार्टिकल है ना जो अभी यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा यहाँ पे रहेगा, ऑसिलेशन सबकी एक जैसी, तो सबका एम्पलीट्यूड सेम हुआ ना। क्या नाम है शिफा, ठीक है, हाँ डिस्प्लेसमेंट एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे सबका डिस्प्लेसमेंट, हमने फेज डिफरेंस के टॉपिक में ये तो पढ़ा था कि सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर एक साथ नीचे थोड़ी आते हैं, कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता है, कोई मीन पर होता है, बट पैटर्न सबका एक जैसा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्टेशनरी वेव में शिफा एक पॉइंट है जो बिल्कुल बीच में, जो कि बहुत हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, इसी के बाजू में एक पॉइंट है जो बहुत लो एम्पलीट्यूड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेड से बना देता हूँ, लेकिन ये जो बीच वाला पॉइंट है आप देखें, क्या इसका एम्पलीट्यूड और इसके बराबर वाले का एम्पलीट्यूड सेम है? मुझे बताएं आप शिफा। नहीं ना, लेट्स से ये पॉइंट ए और ये बी है, मुझे बताओ ए और बी में ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका है? ए का ज्यादा है ना, सही है। अच्छा मुझे बताओ पॉइंट सी का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है सबसे कम है? सबसे कम है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, बिटवीन टू नोड, यानी एक नोड ये रहा एक नोड, इनके बीच जो पार्टिकल्स है ना, इनका सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। अब यहां से आपको एक बात समझ आएगी कि इस पॉइंट को हम कहते हैं नोड, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई? नोड तो वो पॉइंट है जो कि डिस्प्लेस ही नहीं हो रहे। एक चीज होती है एंटी नोड, एंटी नोड वो पॉइंट होता है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता होता है। अब पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, तभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ एक पार्टिकल है जो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है। वो कौन है? वो कौन सा पॉइंट है? वो है पॉइंट, बोलो ना, वो पॉइंट है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एंटी नोड। एक बात समझ में आ गई कि सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है,
और दो नोड्स के जो बिल्कुल बीच में होगा ना, जैसे एक ये नोड है एक ये नोड है, इसके जो बिल्कुल बीच में पार्टिकल होगा ना, वो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंटी नोड, जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। पहली बात, पॉइंट बिटवीन टू नोड्स सबका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, और बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ टू नोड्स एक पॉइंट होगा जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, एंड वी कॉल दैट पॉइंट एज द एंटी नोड। समझ आ रही है बात? तो अब आपको एक चीज समझ आएगी, बल्कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं। Every point in the wave has the same amplitude. Points between two successive nodes have different amplitude. और दो नोड्स के बीच में जो एक पॉइंट होता है उसे क्या, अच्छा अब एग्जामिनर इज सन ऑफ अ जीनियस, क्या पूछता है, हरकतें चेक करो। वो पता क्या करेगा, वो आपको जस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्ट, वो आपको ये देगा बना, वो आपसे बोलेगा ये एक स्टेशनरी वेव है। मैंने आपसे क्या बोला, इसको देख के बच्चों को बुखार आ जाता है कि ये कैसी वेव है, बट जिन्होंने कॉन्सेप्चुअली स्टेशनरी वेव को पढ़ा हुआ ना, उनको पता है कोई मसले की बात नहीं, स्टेशनरी वेव ऐसी दिखती है एक पॉइंट ऑफ टाइम, और लिखा हुआ होगा कि दिस इज हाउ अ स्टेशनरी वेव लुक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सही है? अब वो आपको बोलेगा यार ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड, ये है नोड, सही है ना? आपसे कहेगा इसमें मार्क करो, इसमें मार्क करो वो पॉइंट जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या चीज? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? एम्पलीट्यूड। अब वो पॉइंट बताएं जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट होगा ये, वो पॉइंट होगा ये, वो पॉइंट होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं करना एग्जामिनर से कि वो आपके आगे ये, हमारा बच्चा क्या एक्सपेक्ट करता है कि एग्जाम में ये बना हुआ आएगा और बोलेंगे बता दो नोड क्या और एंटी नोड क्या। अबे इसको देख के तो कोई बता देगा ना ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, और ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। दिमाग हिल जाता है बच्चों का जब उनके आगे एग्जाम में ये सवाल आता है। क्या आपसे कहता है ये, वो ये बनाएंगे ही नहीं ना, वो सिर्फ यही दे देंगे आप। सही है? और आपसे बोलेंगे यार लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सही है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। और वो आपसे कहेंगे यार एक काम करो, वो पॉइंट बताओ जिस पर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या कहते हैं, ऑसिलेट करेगा, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। वो कौन सा पॉइंट होगा? वो पॉइंट ई होगा, एफ होगा, जी होगा। सिर्फ ऐसे मार्क करने के मार्क्स होते हैं एग्जाम, दो मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ इसको मार्क करने के लिए पूरा टॉपिक पढ़ना चाहिए, वरना आप बता नहीं सकते उसका जवाब। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो सबका जीरो है। ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी है सबका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। एम्पलीट्यूड थोड़ी सबका जीरो है। एम्पलीट्यूड कह सकते हो इसका जीरो है, क्योंकि ऑसिलेट ही नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड इनका है। आज तुमको जीरो डिस्प्लेसमेंट पे नजर आ रहे हो ना, हमेशा थोड़ी नजर आएंगे। थोड़ी बाद देखना ये चांद पे बैठे हुए होंगे। हाँ, ये थोड़ी देर बाद भी वही रहेगा पॉइंट है, क्योंकि ये नोड है। You have a question? Yes. बोलो नो। Are you all clear till now? फिट सीन है भाई। बेशरम है, सबने लीव भी करना शुरू कर दिया, बोला वही चीज बार बार पढ़ा रहा है, छोड़ो। हाँ हाँ, एंटी नोड तो ऑसिलेट करता है ना। ठीक है, इसलिए हम पॉसिबल करेंगे इंशाल्लाह, आपको फील भी नहीं होगा, आपको मजाक लग रहे होंगे इसके क्वेश्चन, जितना हमने इसको डेप्थ में डिस्कस कर लिया है ना, बट हमें पहले सारे पॉइंट डिस्कस करने होंगे, उसके बाद ही पॉसिबल करने में कोई फायदा है। ठीक है, वोट देंगे पाकिस्तान को। चलो भाई, कल छुट्टी है, कल इलेक्शन है, प्लीज वोट डालें, और जो आपको सही लगता है उनको वोट डालें। फटे ना करें, फेसबुक पे बिना वजह उल्टी पोस्टर ना डालेंगे, बाद में आपको तंग किया जाए। एंजॉय करें छुट्टी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज।